Assalamu alaikum. So, in last two videos, we discussed about CPU scheduler and dispatcher. We discussed about what a CPU scheduler is and what does it do. Also, we discussed about the dispatcher module that is present in the operating system and its main functions. So, now we have to discuss the scheduling criteria. Now we are ready to discuss the scheduling. After this video, we will discuss different techniques of scheduling. But before doing that, we need to discuss the scheduling criteria. Somebody in British English they say scheduling. In American accent they say scheduling. So whatever it is, it's basically scheduling criteria. Okay. So in scheduling criteria, we have 5 parameters. Number one thing is that we want to see CPU utilization. Of course, we have to maximize the CPU utilization. If we maximize the CPU utilization, only then it will be beneficial for us. We don't want our CPU to be underutilized. Okay, so that is the reason why we want to maximize the CPU utilization. For example, if we have a process that is in a running state and he wants to go for an input or output or an event, in that case that process will go into the waiting state and the CPU will be free. So it is better to assign the CPU to some other process at that particular point in time rather than waiting for the process that is in waiting state. Similarly, we discussed about context switching time yesterday. So we want to minimize the context switching time too. That also contributes towards lesser CPU utilization, because the thing is that जितना हम context switching time में time लगाएंगे, CPU का time जितना context switch करने में लगेगा उतना वो effectively काम कम करेगा. तो हमारे पास हम यही समझेंगे कि हमारा CPU ठीक से यूटिलाइज नहीं हुआ. तो अब हमें देखना पड़ेगा. अच्छा, बाद वक्त ऐसा भी होता है कि हमारे पास कोई ऐसा प्रोसेस होता ही नहीं है जिसको हम CPU पे ला के रख सकें. ठीक है ना. तो वो जो है वो जाहिर बात है, अगर ऐसा कोई सीन ही नहीं है कि ऐसा कोई प्रोसेस मौजूद ही नहीं है जो कि CPU पे आए, तो जाहिर है CPU यूटिलाइज नहीं होगा. अच्छा, फिलहाल हम CPU यूटिलाइजेशन जब डिस्कस कर रहे हैं, इसके अंदर हम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम वाले जो टाइम खराब होता है कॉन्टेक्स्ट स्विच करने में, उसको फिलहाल हम इग्नोर कर देंगे. फिलहाल हम उसको बीच में लेके नहीं आते. ठीक है, उसको फिर हम लेटर ऑन किसी और टाइम पे डिस्कस करेंगे. दूसरी चीज जो होती है वो होती है थ्रूपुट. थ्रूपुट क्या होता है? थ्रूपुट इज द number of processes that leave the system that are completed in a unit of time. ठीक है, यानी कि पर यूनिट ऑफ टाइम पर मिली सेकेंड हमारे कितने प्रोसेसेस कंप्लीट हो रहे हैं. ठीक है, इसको हम कहते हैं थ्रूपुट. तो थ्रूपुट को भी हम जो है वो मैक्सिमाइज करना चाहेंगे. ठीक है, this also needs to be maximized. फिर तीसरी चीज हमारे पास आती है जिसको हम कहते हैं टर्न अराउंड टाइम.
ये बहुत सारी जगहों पे आपको, आप बहुत सारे सिस्टम्स में जाएंगे तो ये आपको TAT के नाम से मिलेगा। TAT कहीं पे लिखा हुआ है तो ये बेसिकली टर्न अराउंड टाइम का मुखफ़्फ़फ़ होता है, टर्न अराउंड टाइम का एब्रीविएशन होता है। व्हाट इज टर्न अराउंड टाइम? टर्न अराउंड टाइम is the time difference between submitting a job to a processor, to a scheduler, and getting the output of that job. यानी कि एक जॉब हमने स्केड्यूलर को दी कि भाई इसको स्केड्यूल करना है, फॉर एग्जांपल एट टाइम t इज इक्वल टू 5 पे हमने दी, और वो हमें कंप्लीट होके फिनिश स्टेट में एट टाइम t इज इक्वल टू 17 पे मिली। हम ये कहेंगे इसका टर्न अराउंड टाइम 12 मिली सेकेंड्स है। टर्न अराउंड टाइम इज फॉर इंडिविजुअल प्रोसेसेस, नॉट फॉर द होल सिस्टम। इफ यू वांट टू फाइंड टर्न अराउंड टाइम ऑफ द होल सिस्टम, वी कैन फाइंड एवरेज टर्न अराउंड टाइम, or we can find standard deviation in turnaround time. Okay, or variance in turnaround time. एवरेज नॉर्मली ये होता है कि हमारे पास जितने भी प्रोसेसेस हैं उनका टर्न अराउंड टाइम को हम ऐड करें और डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ प्रोसेसेस लेके आ जाएं। वेरिएंस थोड़ा सा इससे मुख्तलिफ होता है। वेरिएंस ये रिकॉर्ड करता है कि ज्यादातर प्रोसेसेस किस रेंज में लाई कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे ऐसा हो सकता है कि एक प्रोसेस का टर्न अराउंड टाइम, एक सिस्टम का टर्न अराउंड टाइम 5 मिली सेकेंड हो और दूसरे का भी 5 मिली सेकेंड हो, लेकिन इंडिविजुअल टर्न अराउंड टाइम में वेरिएंस बहुत ज्यादा आ रही हो। मिसाल के तौर पे अगर दो प्रोसेसेस हैं, एक का टर्न अराउंड टाइम 9 है, 9 मिली सेकेंड, और दूसरे का 1 मिली सेकेंड है, तब भी एवरेज 5 आएगा। और अगर सिस्टम बी के अंदर पहले का टर्न अराउंड टाइम 4 है, प्रोसेस 1 का, P1 का, और P2 का टर्न अराउंड टाइम 6 है, तब भी एवरेज 5 ही आएगी। लेकिन वेरिएंस दोनों के केस में डिफरेंट होगी क्योंकि उनका आपस का डिफरेंसेस बहुत ज्यादा है। तो हम टर्न अराउंड टाइम को आइडियली मिनिमाइज ही करना चाहेंगे। आप लोगों ने सही अंदाजा लगाया कि ये मिनिमाइज होगा तभी हमें फायदा होगा। यानी कि हम तो ये चाहते हैं आइडियली कि हमने अभी जॉब सबमिट करवाई, अभी उसके रिजल्ट सामने आ जाए, डिले हो ही नहीं उसके अंदर, ठीक है ना। लेकिन क्या करें, सिस्टम के अंदर और भी प्रोसेसेस हैं, सिस्टम के अपने सिस्टम प्रोसेसेस हैं, तो कुछ ना कुछ डिले तो आता है। तो चलो अगर जीरो ना हो तो कम से कम मिनिमाइज ही हो जाए। फिर चौथी चीज हमारे पास आती है जिसको हम कहते हैं वेटिंग टाइम। अच्छा, ये वेटिंग टाइम क्या चीज है, पहले इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लें। वेटिंग टाइम is not the time that a process spends in waiting state. ये कंफ्यूजन थोड़ी सी क्लियर करके रखिएगा। It is not the time spent in, it is not the time spent in waiting state. ये वेटिंग स्टेट में स्पेंड किया जाने वाला टाइम नहीं है, ठीक है। ये टाइम है जो एक प्रोसेस रेडी स्टेट में प्रोसेसर के लिए वेट करते हुए टाइम लगाता है। इट इज द टाइम स्पेंट इन रेडी स्टेट व्हेन इट इज रेडी बट इट कांट गेट द प्रोसेसर। यानी कि वेटिंग, ये वो वेटिंग नहीं है जो प्रोसेस खुद
अपनी मर्जी से कर रहा है इनपुट या आउटपुट के लिए, ये वो वेटिंग है जो सिस्टम उसे करवा रहा है प्रोसेसर देने से पहले। आइडियली तो हम यही चाहेंगे कि जैसे ही प्रोसेस हमारा आए, अगर हमारा प्रोसेस है P1 तो वो आए सिस्टम में, उसको डायरेक्टली रनिंग स्टेट में डाल दिया जाए, वो प्रोसेसर पे चलता रहे और जब तक उसको जो है वो इनपुट या आउटपुट नहीं लेना पड़ता तब तक वो चलता रहे। अगर इनपुट या आउटपुट लेना भी पड़े तब भी जैसे ही वेटिंग स्टेट से वो रेडी स्टेट में वापस आए, उसको दोबारा प्रोसेसर मिल जाए और जितनी जल्दी हो सके वो एग्जिट कर जाए, पूरा काम कंप्लीट कर जाए। तो हम चाहेंगे कि ये मिनिमाइज हो, लेकिन क्या करें, दुनिया है, सिस्टम है, इसके अंदर और प्रोसेसेस भी हैं, सिर्फ ये अकेला प्रोसेस नहीं है, तो हम मिनिमाइज ही कर सकते हैं। अब वेटिंग टाइम भी प्रोसेसेस का इंडिविजुअल होता है, ठीक है, वेटिंग टाइम भी प्रोसेसेस का इंडिविजुअल होता है और सिस्टम का ओवरऑल एवरेज वेटिंग टाइम भी होता है और उसके अंदर वेरिएंस भी होती है। वेरिएंस को हम थोड़ा सा कम डिस्कस करेंगे, लेकिन एवरेज को हम इस स्टेज के ऊपर ज्यादा डिस्कस करेंगे। हम ये चाहेंगे कि ऐसा ना हो कि एक का वेटिंग टाइम बिल्कुल ही जीरो आ रहा हो और दूसरे का वेटिंग टाइम पता नहीं कितना ज्यादा आ रहा हो, हम ऐसा नहीं चाहेंगे, ठीक है ना। लेकिन बहरहाल इसलिए वेरिएंस जो है वो उसकी इंपॉर्टेंस बहरहाल आ जाती है, लेकिन हम फिलहाल उसको डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ मैं मेंशन कर रहा हूं ताकि आप लोगों के दिमाग में रहे कि हम बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते इस बात को कि एक प्रोसेस को बहुत कम टाइम वेट करना पड़े और एक प्रोसेस को बहुत ज्यादा टाइम वेट करना पड़े, ठीक है। फिर हमारे पास एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं रिस्पॉन्स टाइम, यानी कि हमारा प्रोसेस सिस्टम में एंटर हुआ उस वक्त से लेके जब तक पहला रिस्पॉन्स रिसीव नहीं हुआ तब तक का जो टाइम है, इसको हम कहते हैं रिस्पॉन्स टाइम। इसको हम करना चाहते हैं मिनिमाइज। आपको भी पता है, हम सब कंप्यूटर यूज करते हैं, आप एक प्रोसेस को चलाते हैं, एक एप्लीकेशन को चलाते हैं, अगर वो फौरन खुल जाती है तो आप बहुत खुश होते हैं, अगर फौरन नहीं खुलती, वो टाइम लेती है और बहुत ज्यादा टाइम ले रही होती है, तो आप परेशान होते हैं बहरहाल। इसके केस के अंदर जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इसके अंदर पहला रिस्पॉन्स का मतलब ये हो सकता है कि आपने एक प्रोग्राम सबमिट किया सिस्टम के अंदर, उसको चलाया और जब पहला आउटपुट उस प्रोसेस ने आपको दिया, आपको हरकत लगी कि हाँ भाई ये प्रोसेस कुछ कर रहा है, कुछ रिस्पॉन्स दिया उसने, कुछ ना कुछ किया उसने, उस प्रोसेस ने, तो इस दौरान जो टाइम गुजरता है उसको हम कहते हैं रिस्पॉन्स टाइम, कि रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है। अब ये 5 हमारे क्राइटेरिया है, ये 5 हमारे पैरामीटर्स हैं, इनको लेके हम जो है वो चीजों को डिस्कस करेंगे। तो लाजमी बात है, अब स्केड्यूलिंग के अंदर हम लोग अगली जो वीडियोस होंगी उसके अंदर एक हम जो है वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग की एग्जांपल करेंगे, एक हम करेंगे राउंड रॉबिन स्केड्यूलिंग की एग्जांपल करेंगे, फिर हम शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट की करेंगे, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग जॉब फर्स्ट की करेंगे, फिर हम प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग की एक एग्जांपल करेंगे